Hi, on the SEOTalk Podcast this week, we are going to talk about is keyword ranking a dead SEO metric? Following is the recording from our live Twitter spaces. If you have a comment to share or a query, please feel free to reach out to us. Thank you. Welcome back to the 88th episode of SEO Talk Spaces. This is your host Malhar, and I have with me my good friend and co-host Parth joining us on a wonderful Monday evening. We have an interesting topic lined up for the day, but before we go ahead talking about it, Parth, you want to say something? Yes, I think so. This is an interesting topic. So SEO has been evolving, and the way it is changing, is it's going crazy. It's difficult on how to attribute what traffic is being drawn from organic search engines, and tracking through keywords has it's getting difficult with more and more zero click nature from search engines like Google. So it's very important to discuss on this very debatable hot topic that is keyword ranking dead SEO metric. But I have a couple of interesting takes and nuances um, as we go through today's session. So super excited for this one, and then we have a couple of known faces here. We have Ator, we have Manikandan, we have Nidhi, Shreyas. Hey guys, thanks for joining in tonight. So if you guys are here and you'll be following all of our conversations, so please make sure that you react with emojis. If you have any thoughts, any opinions on today's topic, just feel free come up on the stage. Like this is an open platform, and we promote freedom of speech. So yeah, let's do that. Let's not go in the latent way, which is trending in a day or two. But let's go. This is the platform where you can come up and practice, and probably you'll get more confidence if you get any speaking opportunities in any of the SEO meetups or events in the near future. So why not? Let's grow together. Let's start. Superb, fantastic, and okay. Hey, Atar, good to see you on the panel as well. But just to get started, and like Parth mentioned, feel free to talk. Uh, we really do not have that, okay, we only have the right answers kind of feeling here. So if you have a different perspective, please share it with us. Please share it with the audience. And as you all would know, the entire session gets recorded, and the recording is not just available on Twitter. We are extending the recording of this session on Spotify as a podcast also. So it's good for your own branding. So tomorrow, if you are looking to build your personal brand, you can always refer back to those podcasts, refer back to places where you have participated in. So please speak. No one is judging you here. That I can guarantee as much. And the topic, as you know, Parth just mentioned, we are going to discuss about is keyword ranking a dead SEO metric? Uh, and I guess the real thought process behind this topic, Path gave a glimpse of it. There are so much stuff going on within the SEO industry at this point of time. So, do we still look at keyword ranking, or do we pick up some different metric? We'll listen to all of that and much more as we converse over the next what about 40 odd minutes. But till then,
just keep listening, keep sharing your uh, thoughts, and okay, if you are not able to come on the panel, and or if you are a little shy about it, you can always respond with an emoji. That also helps us to understand whether we are on the right track or if you have a different perspective. So, without further ado, no more blabbering. Let's get started. And we have the first question because the entire topic was based on something Parth had shared a little while earlier with us in the personal conversation, and that's where the genesis of this entire topic came. And this refers to Kevin Indig's article on SEO Journal. And so Parth, I will come to you first in terms of Kevin Indig argues that focusing solely on keyword rankings is outdated. And now, if you can probably explain what was his thought process of this shift towards other metrics? Sure. I think so. The whole credit goes to Kevin Indig, while he has shared a couple of data points, but I'll add my thoughts and nuances into it. Um, I think so. If we look at the SERP this day in time, for every different industry, the SERP is kind of populated with a lot of rich results, whether it's knowledge panels, local packs, answer boxes, and whatnot. That clearly means a single keyword ranking no longer captures the full scope of website's visibility. As simple as that. Like, we cannot say that, hey, this particular single keyword is driving the whole traffic. So there are multiple SERP features that are driving traffic. And the user behavior is also changing what users are expecting from the SERP features. Additionally, I think so, with the intent-based search and how the users have searched in their logged in browsers, where their Gmail is logged in, I think so there's a lot of personalization and intent-based SERP features being shown. So it is very, very important that we do not judge and conclude with just a snapshot of a keyword ranking that, hey, we're ranking on position 2 or position 3, and we are getting 5% or 10% or 20% CTR, and this is the traffic there. That's a very old school think of approaching keyword ranking as a whole SEO metric. But there are a ton of personalization and intent-based SERP features, which plays a bigger role in driving organic traffic rather than just keyword ranking. Fantastic point. Athor, if you want to share something. Hi Malhar, hi Parth, hi everyone. So सब लोग कैसे हैं? आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे. एंड जैसा कि बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तो अभी तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के. खैर, सो पॉइंट ये है कि जैसा कि टॉपिक है कीवर्ड रैंकिंग का डेड एसईओ. सो अभी क्या ना कि बहुत सारी चीजें तो जो बहुत फास्टली चेंज हो रही है. एसईओ इंडस्ट्री जितना चेंज हो रहा है डे बाय डे, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं. सो उसी हिसाब से मैट्रिक्स भी चीजें चेंज होती है. हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना होता है. हम लोग बहुत सालों से एसईओ करते आ रहे हैं. हमारा पुराना जो पैटर्न है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को अगर हम एसईओ सक्सेस के लिए देखते हैं, हमारी बहुत सारी मैट्रिक्स होती है. उसमें से फर्स्ट वन कीवर्ड रैंकिंग का होता है कि सबसे पहले हम अपने कीवर्ड को रैंकिंग को चेक करते हैं. तो फर्स्ट मैट्रिक, और स्टिल आज भी चीजें चेक की जाती है और है भी है. बट चीजें थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है कि अभी हमें क्या करना है. जो एसईआरपी अभी राइट नाउ है और आने वाले समय में कितना चेंज होगा, सो वी हैव टू रेडी फॉर दैट. और हमें जो है
अपने नॉट आज से कीवर्ड फोकस होकर के सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हमारा एसईओ का बेसिक बेसिक चीजें अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड पे ना जाएं, बहुत सारा एसईओ बस पे ना जाएं, या बहुत सारी सी चीजें हमारे सामने हैं कि दुनिया भर के एसईओ के टूल हमारे सामने बनते हैं और लोग बना भी रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। बट अगर हम एसईओ की बेसिक पॉइंट ऑफ रहें और हम जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें हैं, तो हम कीवर्ड को फोकस करते हैं। बट अगर हम सिर्फ एक चीज पे ना फोकस रखे, अगर हम अपने कीवर्ड को एंटिटी बेस बना ले, जैसे एंटिटी है, सिमेंटिक एसईओज है, अगर इसको फोकस करके थोड़ा बहुत अपने कंटेंट को लेकर के चले, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ स्केल कर जाएगा, रादर देन कि हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करें कि कीवर्ड रैंकिंग या कीवर्ड जो अराउंड हो। तो हमें एंटिटी बेस पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए, हमें सिमेंटिक है, बहुत सारी डेटा स्ट्रक्चर्स है। 2025 का जो सिनारियो बहुत सारी चीजें टेक्निकल की तरफ भी जा रहा है, लेकिन हमें ज्यादा टू मच टेक्निकल भी नहीं होना है, टू मच हमें टूल्स पे भी नहीं बहुत ज्यादा बेस्ड होना है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक अपने आप को फोकस करना, मैनुअली चीजों को लेकर के चले। आज भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कीवर्ड के मैट्रिक्स को चेक करता हूँ। बट ऐसा नहीं कि अपने जब कंटेंट या ब्लॉग आर्टिकल जो भी चीजें बनाता हूं तो कीवर्ड को चीजों में नहीं लेता हूं। कीवर्ड तो हमारा ऑफ कोर्स रहता है, बट हम उसका कुछ एंटिटी भी देखते हैं कि क्या हो सकता है, सीआरपी को चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें और हमारे सामने एक्सप्लोर होता है। तो जब एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें, ऑप्शन ये होगा कि हम सिर्फ जो है ऑर्गेनिक, जो सिर्फ गूगल सर्च पे ना हो करके और भी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और हमें ऑर्गेनिक बूस्ट मिल सकता है और हमें रेफरल ट्रैफिक मिल सकता है, चाहे एलएलएम मॉडल हो, वहां पर भी हम किस तरह रैंक हो सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमें कीवर्ड के अराउंडिंग। सो अभी का पॉइंट ये है, आगे डिस्कशन और होता है, सारी चीजें देखते हैं किस वर्ड जाता है। तो मेरा टेक अभी भी यही है। सो ओवर टू पर्थ। या आई टोटली एग्री। आपने जो बोला, तो आई थिंक सो जो सारे कीवर्ड्स के अराउंड जितने रेलेवेंट कीवर्ड्स है, चाहे आप सिमेंटिकली रेलेवेंट कीवर्ड बोल दो या फिर लेक्सिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स बोल दो, बट कीवर्ड्स के अराउंड जो भी टॉपिक्स हैं, वो सारा मिला के एक एंटिटी बनता है। तो अगर एंटिटीज ऑप्टिमाइज्ड है, इसका मतलब है कि आपका पूरा टॉपिकल अथॉरिटी अच्छे से बना हुआ है वेबसाइट पे। तो वो अप्रोच अभी काफ़ी पिछले सालों से इवॉल्व हो रहा है, और जितना वो समझने की कोशिश करेंगे, आई थिंक सो मार्केट में टूल्स है, इनलिंक्स करके एक टूल है, inlinks.com। तो वहाँ से आप अपना एंटिटी एनालिसिस कर सकते हो। उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ है, एंड मशीन रीडेबल होती है, नॉलेज ग्राफ मशीन आईडी होता है। सो उसमें भी काफ़ी एंटिटीज़ में भी चीज़ें डिटेल में होती है, बट अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक सो विल नॉट डाइग्रेस, बट या आई टोटली अग्री, एम अलाइन। Super. Good start to the conversation, and I guess all of us agree that uh, keyword rankings is probably outdated at this point of view. But I just wanted to probe a little further on that, and when we say it is outdated, or you have your own particular reasons, but if say again, Path, if you can probably start with that and say what are some of those inherent limitations in say just doing keyword rankings as a standalone metric, and why it could be misleading. I think so. Just tracking a keyword ranking offers a very narrow view that a website might appear in search results for particular XYZ position, but do we have clarity that that position will translate into meaningful traffic or engagement or any sort of conversions? We are not yet sure. But the reason there's a zero click nature is there's a lot of volatility in SERP because of personalization, local variations of SERP features. There are algorithmic updates, and we often overlook factors like what will be the CTR,
in that particular industry, and what will be the quality of traffic based on the intent. So there are multiple factors which come into the picture, and I think so relying solely on rankings can lead to an incomplete and misleading assessment of the overall SEO reporting and performance. That was a fine point, and what I am keen to understand a little more is this is your experience, right? Uh, it's very difficult to track the real intent. So, uh, how do you manage that? Again, so it's between you or Athor, or if anyone wants to say, probably dive a little deeper into this, because intent is something that we see most SEO guys are talking about at this point of time, that track the intent and do this. But are you are you following some specific ways to understand the intent? Because I guess my next question is also around the entire user behavior part. So I just wanted to say have this premise and then get into the user behavior point. Yeah, interesting question. Uh, to identify the intent, I think so that there are well-established tools out there. I think so. SEMrush has also come up with that, but the best one out there so far that I've been using for close to 2 years now is the Keyword Insights tool by Sugandhan and Andy. So this KWI tool helps you identify the intent, but uh, if you want to do a very normal foundational search, so for example, if you're searching for a keyword like meme generator, if you Google it, you know that when you search on Google, there are multiple tabs. That is all web, then images, then videos, then news, and stuff like that. Okay. Now, when you search for a keyword like meme generator, the very first thing after the web search is the image. Okay. And if you search for a keyword like text to video, then you will see the video section right after the web search. So that is a clear indication. And if you are searching for a keyword like um, buy a smartphone, something like that, then you'll see the shop section coming before image and video. So this clearly gives the intent classification on a high level that hey, these queries are for whatever format. So I think so the content format also matters a lot based on the intent. So this is very first principles foundational research, but there are advanced tools out there which can help to identify the exact intent for particular landing pages and different types of content formats. Perfect. अतर भाई आपकी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल। और अदर जो फॉक्स और भी जुड़े हैं अपनी पॉइंट्स अगर रखना चाहें तो ओपनली आ सकते हैं, सभी को इनवाइटेड है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी कुछ भी बोलना है तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सो या बेसिकली इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी ना अपने कंटेंट को जिस तरीके अभी बताया कि कीवर्ड के बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे जनरेटिंग टूल हैं जो आपको कीवर्ड इंटेंट देते हैं, चाहे कीवर्ड इंसाइट्स हो या गूगल के कीवर्ड प्लानर हो या फिर बहुत सारे टूल हैं हमारे मार्केट में, या चाहे जीपीटी से आप करते हो या फिर डीप सीक, बहुत सारे चीजें। तो कीवर्ड इंटेंट आपको मिलता है और अपने कीवर्ड को इंटेंट को ये फिगर आउट करना है कि अगर आप 3 चीजों में डिवाइड कर लियो बहुत स्मार्ट तरीके से, टोफू मोफू बोफू, जिस तरीके से अगर इसको अपने कंटेंट को आपने डिफाइन कर लिया कि हमें अपने यूजर्स को किस तरीके से हमें टोफू में रखना है, मोफू में रखना है या बोफू में रखना है, और इसको हमने स्मार्टली तरीके से क्राफ्ट कर लिया, यूजर को टारगेट कर लिया और इंटेंट को डिफाइन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है कि हमें यूजर को किस तरीके से ग्रैब करना है अपने इस तमाम कंटेंट को प्लानिंग को लेकर के। तो या लॉट्स ऑफ अ टूल और लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू। बिल्कुल बिल्कुल। So I just want to dive into the next question quickly because एक continuity of conversation बना रहेगा. And while I jump into that, if someone else has a different question, if you want to come on the panel and ask that question, please do so, or you can
tweet to us. You can use the tweet button, something which has the it's just right beside the emoji button. Click on that. You can drop us a text on there, and we'll pick up that question. So my next question was, again, like I said earlier, on the user behavior. Uh, a lot of changes is happening from a user behavior point of view, and that is where the thing is, can we still rely on keyword ranking as an indicator of success? Because the user behaviors are changing. The way your SERP is changing a lot today. So how do you manage that? Again, this pertains to the keyword ranking as a factor, and with the user behavior and SERP evolution also coming in, how do you manage it? First, Yep. I'll answer to that. Athor, do you want to answer that before I answer it, or नहीं नहीं, आप दीजिए आंसर, अभी ठीक है देखता ठीक है हूँ। cool. Okay, so I think so. जैसे जैसे आई थिंक सो SERP इवॉल्व हुआ है, एंड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेरी आपको रेयरली मतलब 10 लिंक्स देखने को मिलेंगे. सो अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च किया और पर्टिकुलर वेबसाइट इज रैंकिंग ऑन पोजीशन 3 और पोजीशन 2, तो वहाँ पे इमेज पैक्स रहेंगे, लोकल रिजल्ट्स रहेंगे, गूगल बिजनेस वाला कुछ पैनल रहेगा, वीडियोस रहेंगे. सो बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया अभी SERP. इवन इफ अ वेबसाइट अगर मेंटेन करता है पोजीशन 2, यूजर्स कैन क्लिक ऑन अ फीचर्ड स्निपेट और अ लोकल रिजल्ट. मतलब यूजर्स का कोई ये नहीं है, उनको जहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, जहाँ पे भी इंटरेक्टिव SERP फीचर मिल रहा है, रादर देन अंदर जाके मतलब रिजल्ट को मतलब वेबसाइट को पढ़ना है, ये करना है, वो करना है. सो ये इवोल्यूशन की वजह से जो ट्रेडिशनल मैट्रिक है अपना कीवर्ड रैंकिंग पोजीशन का, उससे हम 100% रिलाई नहीं कर सकते कि इससे पोजीशन 2 पे रैंक होने से ट्रैफिक आएगा ही आएगा, एंगेजमेंट आएगा, कन्वर्जन आएगा, कोई गारंटी नहीं है. तो अभी जो एक पोजीशन जो एक सोल इंडिकेटर था कि उससे सक्सेस मिल गया, तो वो अभी टाइम चला गया है SEO में कि पोजीशन 2 पे सक्सेस मिल गया. या डेफिनेटली बहुत अच्छी बात ये है कि जरूरी नहीं कि आप टॉप 1 टॉप 2 पे रैंक कर रहे हो तो आप बहुत बड़े विनर हो गए हो. इस बात पे ध्यान रखना है कि मतलब कि हमारी जो रैंकिंग पोजीशन आ रही है वो राइट ऑडियंस के लिए है और उससे हम क्या बेनिफिट ले रहे हैं. अगेन मैं हमेशा मानता हूँ कि SEO जो है इट्स नॉट ऑल अबाउट द ट्रैफिक जनरेट, कि आपने ट्रैफिक के लिए SEO कर रहे हो या फिर उससे कितना सेल्स या रेवेन्यू ड्राइव कर रहे हो. ये मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम क्या गेन कर रहे हैं. हमारा अल्टीमेटली SEO का एक गोल होता है कि हम ये चीज, इससे हमें ये चीज मिलेगी, हमारा ये रिजल्ट हमारा क्या देने वाला है, वो KPI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमारी ब्लॉग ऐसी है जहां पे सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करना है, एक ब्लॉग, एक हमारी वेबसाइट जो सर्विस पेजेस है या कंसल्टेशन पेज है, तो उससे हमारा सेल कितना हम ला करके दे रहे हैं SEO से ऑर्गेनिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉट है कि हम 1 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं. हम अभी जिस क्लाइंट के लिए मैं काम भी कर रहा हूँ वो पोजीशंस SSC के 7th पे भी है, लेकिन वहां से हमें लीड जनरेट मिल जाती है. तो या दैट्स गुड, उन्हें भी खुश है, लीड जनरेशन SEO से मिल रहा है ऑर्गेनिकली. तो हम फोकस करते हैं कि हम बहुत रिलेवेंट रहे, हमें सही अपने इस कीवर्ड को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे वो चीजें हैं. अगेन ये SEO होता है कि हमें टॉप रैंक करना, टॉप रैंक करना, टॉप रैंक करना है. और किसी के लिए भी है, कोई भी अगर न्यू बिगनर्स भी आते हैं तो अल्टीमेटली दिमाग में ये होता है कि वेबसाइट है उसे टॉप पे रैंक कराना है, दैट इज SEO. लेकिन इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी चलती है. जब आप काफी वक्त बिता देते हो SEO में करते करते, तब आपको रियलाइज होता है कि अल्टीमेटली हमारा SEO का इंटेंट क्या होना चाहिए. आजकल अभी आप देख रहे हो कि हर कोई SEO एक्सपर्ट बना बैठा है, चाहे ट्विटर हो चाहे लिंक्डइन हो. हर कोई केस स्टडी शेयर कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है कि ये SEO ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है. बट हमारा मानना ये है कि SEO को रियल तरीके से अगर आप समझोगे
तो वो आपको रियल मीनिंग क्या होती है, हमेशा जॉन म्यूलर भी कहते हैं कि एसईओ से स्पैम ना करो, स्पैम ना करो, ठीक है। तो स्पैम एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सर्च इंजन मत को हेल्प करना है, हमारी गारंटी हमारी ये होती है कि एज एसईओ कि हम यूजर को हेल्प करें, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सोचेंगे तो सारी चीजें ठीक चलेगी। अगर सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वहां थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई थिंक मैं सही ट्रैक पर हूं या नहीं, अदर्स का ओपिनियन चाहूंगा मैं जरूर इसमें। Yeah, sure. Fantastic. Shreyas has also joined on the panel. So, Shreyas, if you have a perspective to share, please do so. मैंने मेरा ये पहली बार है, तो हेलो एवरीवन। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक एसईओ के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है उसमें से यूजर बिहेवियर का रोल मेनली रहा है। सो मेरी एक प्रोग्रामेटिक एसईओ के रिलेटेड एक वेबसाइट है जिसमें मैंने यूजर बिहेवियर का मेन रोल देखा था। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स थे जो कि लाइक 3 to 10 में रैंक कर रहे थे, बट उसमें से बहुत सारे लीड्स आ रहे थे और मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था कि वो टॉप पे आए। क्योंकि हो क्या रहा था कि जब भी यूजर वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आता था, कोई भी यूजर, और जब भी यूजर उस लैंडिंग पेज पे लैंड करता था तो उसको जो चाहिए वो मिल जाता था, तो वो सेटिस्फाई है। और वो गूगल को भी इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि कैसे कि लाइक वो कहाँ क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा है, कितने टाइम है वहां पे। तो उसी वजह से वो, और भी एक जो मैट्रिक है कि वो डायरेक्टली बैक बटन नहीं दबा रहा है और गूगल पे एसीआरपी पे फिर से जाके लाइक सर्व नहीं कर रहा है। सो वो एक एडवांटेज हो रहा था उस वेबसाइट के लिए। सो दैट इज द लाइक क्वाइट like beneficial for us for very engaging website and engaging content, and user friendly content is also important for the user behavior. Very nicely put, Shreyas. So, again, like you also mentioned, user behavior is definitely important. And yeah, that probably takes me to our next question in terms of say the SEO strategies aspect. So, I don't know between any of you if you want to share an example or a case study where focus was on aggregate organic metric and rather than just tracking the keyword positions alone. Parth or Shreyas, if you want to pick up. Yeah, Parth, go ahead, please. Sure. Yeah. Okay. I think so. If I were to share an example for aggregate, I would take an example of an e-commerce brand. I think so. If we are working for an e-commerce brand and वहाँ पे स्टेबल कीवर्ड रैंकिंग है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब पोजीशन 2 पे रैंक कर रहा है और पॉसिबली 6 महीने पहले जो ट्रैफिक आता था उससे अभी ट्रैफिक 40% 30% डिक्लाइन हो गया है। तो यूजर एंगेजमेंट ये ड्रॉप हुआ है, वहां से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, और उसका रीजन क्या हो सकता है? तो इट कुड बी clear indication that due to some additional add on to the pages. For example, if we are running a Shopify store or if we are running any other store, और वो केस में अगर कुछ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि प्रोडक्ट्स का क्रॉस सेलिंग हम ऐड कर रहे हैं, तो वो एड ऑन की वजह से पेज लोड स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। तो एड्रेसिंग these technical issues also helps in recovering in traffic. So this is one part of it. And the second part of जो अपना एग्रीगेट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो जो गूगल मर्चेंट लिस्टिंग है उसमें we can list all of our SKUs and it shows up on the shopping tab. So वो भी एक important हो गया है
कि वो जैसे एड्स के जैसे दिखता है। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट CRP फीचर। इट्स बीन हियर सिंस 2024। सो ये सारी चीज़ों की वजह से एग्रीगेट मैट्रिक्स को देखना मतलब मुश्किल हो जाता है सिर्फ कीवर्ड रैंकिंग के स्टैंड पॉइंट से। मतलब आपके और भी SERP फीचर्स है या फिर आपके कोई टेक्निकल SEO प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। Okay, so I have something which Keyur has also shared, so I'll just try to probably read that, Keyur. And it says, most important is that the website should be clean, good UI and UX, and user navigation for user experience. So uh, I guess that is probably step zero of any good website. So it needs to be there, irrespective of whatever it's a service, product, etc. that you are selling. So definitely UI UX has to be top notch, and that definitely impacts. And I'll go also go back to say the previous episode where we talked about uh, say not just focusing on traffic but focusing on conversions, and some of those the things that we are probably talking about today also aligns with similar stuff, right? That okay, are we focusing on some vanity metric to probably look at traffic, or should we focus on conversion? And Athar also spoke about that. Does not matter position 1 to 5, is it giving you conversion? So and the last example which Path shared. So I'll move ahead and pick up this small question in terms of recalibrating the SEO measurement frameworks, right? Because someone who has been using the keyword centric approach, how do you transition towards a measurement which is probably focused more on the overall or the aggregate organic performance? Parth? Yep, I think so. Just our focus was organic traffic that we used to check on Google Analytics पे हम देखते थे जब यूनिवर्सल एनालिटिक्स था अप टू 2022 2023। फिर अभी हम पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से GA4 पे ट्रैफिक देखते हैं, बट मेजरली अभी GSC पे रिलायंस बढ़ गया है हमारा। सो एक हमारे पास रैंकिंग टूल रहेंगे थर्ड पार्टी जो है अपने SEMrush से कोई ट्रैक कर रहा है, कोई ऐसी रैंकिंग यूज कर रहा है। मल्टीपल डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, फ्री एंड पेड। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रैंक ट्रैकिंग का जो थर्ड पार्टी टूल्स रैंक ट्रैकिंग करते थे वो SERP के थ्रू करते थे, एंड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन थ्रू OpenAI एंड परप्लेक्सिटी एंड स्टफ लाइक दैट, Google has recently enabled JavaScript as mandatory to crawl those pages. So जितने भी scraping tools थे, तो the cost of keyword tracking has gone very very high for SEMrush, Ahrefs and all the rank tracking tools. तो वहाँ पे मतलब बहुत वेग पिक्चर हो जाएगा, मतलब assumptions पे चीजें जाएगी। एंड उतना जो पहले फ्रीक्वेंटली रैंकिंग्स ट्रैक होते थे, वीकडेज बुक क्या है, वीकेंड पे क्या है, अगर कोई ट्रैवल का एग्जांपल दें। बट अगर अगर हमको पूरा SEO का जो कैंपेन का मेजरमेंट फ्रेमवर्क है, अगर उसको पूरा अलग तरीके से सोचना है, सो we'll have to integrate the data points from Google Analytics, Google Search Console, and a couple of heat map tools like MS Clarity and others, ताकि हमको पता चले कि यूजर का बिहेवियर क्या है। सो शिफ्टिंग अ फ्रेमवर्क फ्रॉम कीवर्ड रैंकिंग to also tracking session durations, the engaged sessions, A, and new users versus existing users numbers, and brand versus non-brand traffic. आई थिंक सो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और ये सारे जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एंड इट विल हेल्प अस टू क्लियरली सेट आवर बिजनेस KPIs कि यहाँ से रेवेन्यू को अटैच करके हम बता पाएंगे कि ऑर्गेनिक चैनल से कितना कन्वर्जन आ रहा है। Super. Athar?
या वेरी गुड पॉइंट। और अभी जो हो रहा है क्या नाम है कि जो रैंकिंग या पोजीशन हम चेक करते हैं, अभी भी वही जो टूल हमारे पास गूगल के, जो गूगल एनालिटिक्स है और सर्च कंसोल है। और सर्च कंसोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते जा रहा है धीरे धीरे, और काफी गूगल उस पे मेहनत कर रहा है। वो दिख भी रहा है कि गूगल उसके अपडेट किस तरीके से कर रहा है। अभी सर्च कंसोल के डेटा में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि लास्ट 24 आवर्स का डेटा है, फिर उसके हिसाब से फिर जब लास्ट 4 आवर्स का डेटा, उसमें भी अपडेट आने लगा है कि अब धीरे धीरे गूगल उससे ज्यादा फोकस कर रहा है सर्च कंसोल को लेकर के। और मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, एडवांस विजुलाइजर करके किसी ने एक्सटेंशन बनाया था, बहुत अच्छा सा एक विजुलाइजर करके है। मैं शेयर कर दूंगा एसईओ टॉक पे वो लिंक, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा बहुत वहां पर। जिस तरीके से लुकर स्टूडियो की तरीके से पूरा डिजाइन किया हुआ है, तो वो काफी इंसाइट आपको और अच्छा मिल जाएगा, इंप्रेशन, सीटीआर, पोजीशन, सारी चीजें। तो काफी आप चीजें एनालाइज कर सकते हो सर्च कंसोल को लेकर के भी। और मेरा जो मानना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सर्च कंसोल को गूगल काफी अलग कर देगा। जिस तरीके से भी सर्च कंसोल को लेकर के हम चलते थे, एनालिटिक्स को मिक्स कर देते, बगैर एनालिटिक्स के हम सर्च कंसोल के डेटा को समझ नहीं पाते थे, बहुत सारी चीजें कमियां रहती थी, बहुत सारी शिकायत भी है सर्च कंसोल का डेटा सही नहीं सही नहीं। तो आने वाले समय में गूगल बहुत ज्यादा फोकस होगा कि सर्च कंसोल को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए उसको और भी बहुत सारे फीचर्स डे बाय डे उसको लॉन्च करेगा, और सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो उस पे भी फोकस होना चाहिए, सर्च कंसोल को भी ट्रैक करें प्रॉपरली, गूगल एनालिटिक्स को प्रॉपरली ट्रैक करें, सारी चीजें अभी भी डेप्थ में, सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। पर्थ, आपने एडवांस विजुलाइजर शायद यूज किया है कि नहीं? आई थिंक अच्छा वो एक्सटेंशन के रिव्यू जा रहा है, आपने यूज किया है इसका? शायद मैंने सुना था। ये किसी ने 1 साल पहले लॉन्च किया था, तो मैंने कोई ईमेल न्यूज़लेटर पे देखा था। बट मैं उसको रेगुलरली हाँ, यूज नहीं करता। बट आप वापस शेयर करना। आई वुड वांट टू चेक इट आउट अगेन। या श्योर, मैं इसके बाद में शेयर कर दूंगा लिंक सभी के लिए, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो चीजें। अगेन वो कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उसको आप फ्रीली चीजें देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। एंड दीपाली आल्सो हियर, अगर कुछ चीजें आप भी स्टेज पर आ सकते हो, शेयर कर सकते हैं सारी चीजें। एंड अगेन एक क्वेश्चन सा पर्थ एंड मल्हार आल्सो कि अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन ये करूं कि अगर एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ बिगनर, कि अगर वो कोई ये पूछता है कि एसईओ 2025 में अगर मैं आ गया हूं, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई क्या होने वाली है? जैसे कि पुरानी जो एसईओ है वो जानते हैं कि क्या क्या केपीआई होती थी। अभी जब बात कर रहे हैं कि कीवर्ड रैंकिंग का जो ओल्ड फैशन हो गया, तो अब ही 2025 में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई होने वाले, वन बाय वन अगर चीजें बता दें, तो सभी ऑडियंस के लिए, सभी के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा चीजें समझने के लिए। क्या हो सकता है ये? श्योर, आई विल आंसर टू दैट। आई थिंक सो। हमारे साथ अभी काफी मतलब निधि ने अभी लेफ्ट किया स्पेसेस। बट आई थिंक सो देर आर 3 women in SEO. संजना वी हैव हियर। निधि भी थे स्टार्टिंग से यहाँ पे, एंड दीपाल इज ऑल्सो हियर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। विमेन इन SEO कम्युनिटी आई थिंक सो बहुत छोटा है अभी इंडिया में। बट आई थिंक सो उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। हमारे साथ काफ़ी विमेन इन SEO जुड़े हैं पास्ट में भी। प्रीति है, ध्रुवा है, दिव्या है, लॉट ऑफ अदर फोक्स, ईशा है। सो प्लीज डू कीप ऑन ज्वाइनिंग। विल will share a particular plan for women in SEO. We are planning something interesting, so stay tuned. Um, sure, I think so. अतोर, अभी आज के डेट में अगर KPIs है तो कोई भी SEO कैंपेन चालू करने से पहले आपको बिजनेस, जो भी CMO है या फिर जो भी CEO है जिससे भी आप बात कर रहे हो, तो वो समझना इम्पोर्टेंट है कि उनके बिजनेस के वो कौन से स्टेज पे है, एंड अभी वो मार्केटिंग में कितना बजट डालते हैं, और उन्होंने मार्केटिंग कितने टाइम से शुरू किया है, और अभी उनके टॉप 3
यूजर एक्विजिशन चैनल्स क्या है, उनको सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स कौन कौन से चैनल से मिल रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, अफिलिएट हो, ईमेल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। और वो एसईओ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो कितने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज आती है और मैं सामने से बोलता हूँ। कुछ कुछ D2C ब्रांड्स अभी रिसेंटली अप्रोच किया, तो आई ऑलवेज रेकमेंड देम कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आप एसईओ स्टार्ट करोगे तो एसईओ में हम सबको पता है जो अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, अम, वो अगर आप 3 या 6 महीने के इन्वेस्टमेंट में आपको अगर आरओआई देखना है तो वो नहीं होगा। तो आई ऑलवेज रेकमेंड देम कि आप पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, 1 साल तक आपके पास इनफ रेवेन्यू हो जाए, कैश फ्लो हो जाए, फिर आप रेडी हो कि एसईओ में आप मिनिमम 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो। तो जब आप ये बताते हो तो आपको क्लैरिटी मिलता है। तो सेकंड पॉइंट इज कि आप समझने की कोशिश करो कि अगर आप गूगल से ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक जा रहा है वेबसाइट पे, तो कहाँ से आपके कन्वर्जन्स आ रहे हैं, मतलब कौन से वो सीटीएज है, क्या वो यूज़र का जर्नी है, लैंडिंग पेज से, प्राइसिंग पेज से, या फिर आपका जो बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है उस उधर से लैंडिंग पेज से। तो वो सारा आप कस्टम इवेंट्स के थ्रू सारे सीटीएस ट्रैक करो, और आपका जो ट्रैफिक आ रहा है और आपके जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं उसको डायरेक्टली को रिलेट करो, क्योंकि आपने वो पूरा बाइंड किया हुआ है। गूगल टैग मैनेजर में आप कस्टम इवेंट्स बना के सारा ट्रैक करो, ठीक है। तो आपके पास क्लियर क्लियर पिक्चर होगा कि ये आपके एसईओ पेजेस हैं, और ये पेजेस पे मल्टीपल डिफरेंट चैनल से ट्रैफिक आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी ट्रैफिक आता होगा, तो वो आप यूटीएम पैरामीटर्स लगा दो, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपको क्लियर क्लियर दिखाना है कि आपका ये टोटल 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम है, उसमें 10% CTR है, इससे आपको 100,000 ट्रैफिक आ रहा है। वो 100,000 ट्रैफिक से आपके 7% फ्री साइनअप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सास ब्रांड है और वहाँ से फ्री टू पेड साइनअप्स कितने हैं, तो फ्री टू पेड साइनअप्स वो पूरा प्रोडक्ट का गेम है, बट आपका जर्नी फ्री साइनअप्स पे खत्म हो जाता है, एसईओ का जर्नी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड होगी, रिटेंशन, चर्न वगैरह, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये केपीआईज को आप डायरेक्टली जहाँ से कन्वर्जन्स आ रहे हैं वहाँ पे आप पूरा जर्नी मैप कर लो, और आपका रिपोर्टिंग वैसे ही होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में कि ये मंथ इतना रेवेन्यू आया, इतने ट्रैफिक से। यप। I think a Okay. lot of interesting folks in the audience. अर्श भी ज्वाइन करे, अक्षय है, and Shreyas also, Chintan also, Keyur, Suresh. So yeah, please feel free to come up on the stage, guys. We are here to have an open dialogue. आपकी क्या राय है आज के टॉपिक पे, वो हम जानना चाहेंगे। So feel free to join, feel free to request, and we'd be more than happy to have you on the stage. Yep, over to you, Malhar bhai. Okay, thank you. No, so I love the topic about tools also, in terms of, again, if someone has a recommendation of tools that and some unknown tools or extensions, please do share it with us. We can prepare a repository of those tools and share it with all SEO Talk members. Come on. Okay, I'll probably create a Google Sheet or something like that, so you can add those tools. And all of us use SEMrush, Hrefs, etc. But what we're looking for is some of those niche tools that you could be using. Uh, so I was also going to talk about the clarity part, and I think some of you are already using, and if you're not using, probably you should start using as soon as possible, because one, it is free. Two, it gives a lot more parameters that you can look through, and as I can probably see, it integrates with your Google Analytics also, so you can either have your Google Analytics dashboard coming there along with along with the setup of clarity also. So please do that, because it will give you a holistic view.
you don't really have to depend on just one tool, GA or GSC, etc. This clearly helps you. So otherwise, if anyone has a thought about tools, etc., now is the time for you to talk about it. So, but I'll go forward, right, in terms of future of keyword rankings. Do you see a future, or do you see keyword rankings playing more of a supportive role in the entire SEO strategy? I think so. कीवर्ड रैंकिंग ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो जाएगा, मतलब उससे काफ़ी इंसाइट्स तो मिलते हैं कि अगर आप सोचते हो कि मुझे मेरे लिए ये पेज पे मेरे लिए ये एक दो प्राइमरी कीवर्ड्स है, कपल ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स है जो अपना नॉर्मल प्रोसेस रहता है, लॉन्ग टेल क्वेरीज है, बट आप जब वो ऑप्टिमाइज कर लेते हो, ऑन पेज कर लेते हो, इंटरनल लिंकिंग कर लेते हो, एंड फिर वो एक लेवल पे रैंक करना स्टार्ट कर लेता है, फिर आप डिस्कवर करते हो कि दिस पेज हैज पोटेंशियल ऑफ रैंकिंग फॉर 300 कीवर्ड्स. इन सम ऑड केसेस 700-800 कीवर्ड्स के लिए भी एक पेज रैंक करता है. एंड वी हैव सम पेजेस हबस्पॉट के, फिर कैनवा के, अब देखो आप दो दो ढाई ढाई हजार कीवर्ड्स के लिए रैंक करते हैं. सो एज फार एज द कीवर्ड इज, अगर वो इंटेंट मैच कर रहा है तो कीवर्ड के लिए वो रैंक करेगा, बट रैंकिंग से ट्रैफिक आएगा, ये उसका क्लियर आंसर नहीं है. तो एज एन एसईओ मैट्रिक वो मैटर नहीं करता, बट आप एक कीवर्ड एक चूज करते हो तो उसके बेसिस पे आपको एक डायरेक्शन मिलता है. एंड नंबर ऑफ रैंकिंग कीवर्ड से आप दूसरी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब आपको पता लगाना है कि ब्रांड वर्सेस नॉन ब्रांड ट्रैफिक क्या है आपका, तो आपको कीवर्ड लेवल पे देखना ही पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपका नॉन ब्रांड रिलायंस कितना है और ब्रांड रिलायंस कितना है. तो उससे काफी इंसाइट्स मिलते हैं. तो आई थिंक सो रैंकिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट वो एज एन सोल एसईओ मैट्रिक जो हम करते थे कि भाई मतलब कोई ट्रॉफी नहीं मिलती अभी पोजीशन 1 पे रैंक करा के, मतलब एज सिंपल एज दैट. सुपर. अतः आपको कुछ ऐड करना है तो? या वेरी सुपर. और बिल्कुल सही बात है कि कीवर्ड को हमें देखना पड़ेगा कि किस लिए हम कर रहे हैं, ट्रैफिक हमारा उससे आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज के लिए. अगेन कीवर्ड मेरा भी मानना यही है कि कहीं नहीं जाने वाला है. जिस तरह की बात कर रहे हैं, इवन हम बैकलिंक को भी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर इसी टर्म को मैं जोड़ दूं कि क्या जो है बैकलिंक डेड हो जाएगी या एसईओ डेड हो जाएगी, सारी चीजें कहीं जाती नहीं है. ये चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है. तो मेरा यही मानना है कि टाइम टू टाइम आपने आपको भी अपग्रेड करना होता है. सोचने की जो नजरिया बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, बट वो चीज होती है. अभी कोई ये बोले कि एसईओ डेड हो गया, 2025 में एसईओ नहीं चलने वाला है, तो डेड किन लोगों के लिए हो रहा है, क्या उसके पीछे स्टोरी है, वो किस तरह एसईओ को सोचते थे. हमारा सोचने का तरीका बदल रहा है, तो हम बोलेंगे एसईओ से बहुत ग्रोथ हो रहा है, एसईओ से ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, हमारे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है. कीवर्ड डायरेक्शन देता है, कीवर्ड से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकाली जा सकती है, जैसा कि बताया हब स्पॉट है, कैनवास है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल की वो मल्टीपल रैंक करते हैं. और ऑर्गेनिक कहीं नहीं जाने वाला है. ये जो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक डेड हो जाएगा, एसईओ डेड हो जाएगा, कीवर्ड डेड हो जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं. सर्च इंजन बदल जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीजें थ्योरी है. आपको अपने फोकस होना है बिजनेस पे, चीजों को सोचिए और बेसिक एसईओ को भी लेकर के चले, सोचे, तो बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी. एक जॉन मिलर का एक ट्वीट या कहीं उन्होंने शेयर किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि सम टाइम आप एसईओ ना करो तो बेहतर है. तो उनका एक सरकास्ट वे था कि हम कभी ओवर एसईओ कर जाते तो हमारे लिए खराब हो जाता है चीजें, हम ना करें एसईओ तो बेहतर होगा. तो बहुत सारी स्टोरी सारे एसईओ के अराउंड चलती है. अगेन कीवर्ड द मोस्ट पिलर ऑफ द पार्ट ऑफ द एसईओ. एंड बट अगेन कीवर्ड के इंटेंट को आप डिफाइन कीजिए. और मैं बोलता हूँ टोफू मोफू बोफू एक चीज है, उसको भी अगर आप अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, सो दैट्स अ ग्रेट. यस यस, टोटली एग्री. और मैं एक दो और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो
कीवर्ड्स के बेसिस पे आप रैंकिंग वगैरह देखते हो तो उस पे आपको एक और चीज़ पता चलती है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आप सीजनलिटी जो आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सीजनलिटी है या नहीं है, तो वो आप कीवर्ड लेवल पे ही देख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो बहुत मैटर करती है कि आपको सीजनलिटी कीवर्ड लेवल पे ही दिखती है। और अगर आपको कुछ भी समझना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी सुपर बाउल का यूएस में चल रहा है, तो वो टॉपिक ट्रेंडिंग में जा रहा है, वो टॉपिक ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप एयर फ्रायर देख लो या फिर आप कोई और ऐसा ट्रेंडिंग कीवर्ड देख लो। आई थिंक सो बैकलिंक को ब्रांडिन का जो नया कंपनी है एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स, उसमें काफ़ी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। सो कोई पर्टिकुलर टॉपिक ग्रो हो रहा है या फिर वो श्रिंक हो रहा है, वो आपको कीवर्ड से ही पता चलेगा। तो मतलब कीवर्ड को ट्रैक करने में कोई गलत बात नहीं है, बट कीवर्ड के बेसिस पे एसईओ सक्सेस को मेजर करना वो गलत बात है। एंड अगर आप अभी जो फ्यूचर आ रहा है कि एलएलएम में आपने कुछ लॉन्ग टेल क्वेश्चन पूछा, क्वेरी पूछा, और एलएलएम से जितना भी रेफरल ट्रैफिक आ रहा है, चैट जीपीटी से भी आ रहा है, आप गूगल एनालिटिक्स 4 में देख सकते हो रेफरल ट्रैफिक में, तो उससे आपको जो ट्रैफिक आएगा वो डोमेन लेवल पे आएगा, पेज लेवल पे आएगा। तो वहाँ पे आपके पास कोई कीवर्ड लेवल पे कोई ट्रैफिक का आपके पास कोई ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है, जो आपके पास नॉर्मल गूगल सर्च कंसोल में है वैसा नहीं है। तो अगर एग्रीगेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैट्रिक का अप्रोच अगर हम देखें और एलएलएम को भी अगर कंसिडर करें, फ्यूचर प्रूफ होना है हमको, तो पेज लेवल ट्रैफिक जो है, अभी वो पेज में आप डाइसेक्ट करो और आप देखो कि नॉन ब्रांड क्वेरीज ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, ब्रांड क्वेरीज ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, या जो भी है, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड लेवल पे आइडिया मिलेगा। बट जो पेज लेवल और डोमेन लेवल ट्रैफिक है, वहाँ से हमको अप्रोच लेना पड़ेगा। एंड दूसरी एक चीज़ है कि चैट जीपीटी से जो भी ट्रैफिक आता है, तो वो यूआरएल पैरामीटर्स के साथ आता है, तो वो रेफरल ट्रैफिक में इजीली ट्रैक हो पा रहा है अभी। सो हमारा मेजरमेंट काफ़ी चेंज होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। Oh, absolutely. Yeah. And I guess that would lead me to the last question of the day because we are just about 5 minutes away from the hour. But if I really have to kind of look at it holistically, we all talked about change in SERPs, change in user behavior, tracking intents, keyword ranking not being the only metric, and overall score or tracking at a larger level. But again, if I have to go back to the basics, and I guess Athar also kind of alluded to this, was what could be our strategic recommendations for this year? Because a lot of business who are probably wants to pivot away from reliance on keyword rankings, how can they build a comprehensive metric strategy this year and probably going forward as well? Yep, I think so. Not relying on one analytics platform should be the way to go if we want to have a holistic view of website performance. And approaching a multidimensional thought process where we also look at engagement, we look at conversions, we look at the user experience through heat map tools like Microsoft Clarity, alongside keyword ranking data. So we'll be able to judge कि मतलब ओके पोजीशन 2 पे रैंक कर रहा है, बट एंगेजमेंट कितना है और वहाँ से कन्वर्ट कितना हो रहा है। ये लैंडिंग पेज पे मोटा मोटी 5 कॉल टू एक्शंस है, तो यूज़र कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरे सीटीए से आगे जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक सो अलॉन्ग द वे एसईआरपी चेंजेस को मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसमें छोटे छोटे ट्विक्स करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज आपने स्ट्रेटेजी बना ली और 6 महीने तक आप वैसे ही काम करोगे,
अगर 1.5-2 महीने बाद SERP फीचर चेंज हो रहा है तो आपको ट्वीक्स करने पड़ेंगे आपके कंटेंट फॉर्मेट में, तो यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द वे। और आपके जो SEO ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो KPIs मेन होने चाहिए, क्लियरली मेजरेबल होने चाहिए अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स। तो आई थिंक सो these would be my recommendations. No, fantastic, and I'll probably say steal something which Atar mentioned in terms of your defining your tofu, mofu, bofu, and probably simplify that in a way that think of it as a funnel only. Uh, Forget your tofu, mofu, wofus, etc. Right? Sometimes you may not even have a middle of the funnel. In that case, how do you define? So, first is define what exactly your funnel looks like, and then start from measuring that each part of the funnel. What are the metrics that you want to track? Uh, Not just focusing on keyword rankings, but at each stage of that funnel, you will have different metrics that will tell you a different story. And Parth rightly mentioned, look at, say, use clarity to get your heat maps and understand. So at this point of time, I guess for SEOs, the best friend is data. uh, if you can understand the data, and that will give you better understanding of the behavior of the user, and also help you to focus on the conversion aspect. And I think we have been talking about the conversion from last week or so much more, because a lot of us again focus more on traffic and say, okay, keyword ranking this, keyword ranking that, or page ranking this and that. But what is it from a business point of view? Parth also alluded, right? What is the business that you are going to gain from a particular strategy? And that should be the crux of your conversations. And for everyone within SEO community who is probably there for a long time, or even if you're starting new, understand the business KPIs and drive backward from there and say, okay, if I have to achieve this business KPIs, what do I need to do across the funnel? Don't just focus on top of the funnel, say इतना ट्रैफिक तो लेके आए, या मेरा पेज तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, बॉस सो 1 2 3 कुछ भी है, पैसा नहीं आ रहा है, राइट? तो थोड़ा बनिए की तरह सोचो, see, focus on the conversion aspect, and I guess that is how the future of SEO could probably look like. Most of us will be looking at it more closely, and that's how we are going to wrap up this week. Parth, before we wrap up, any final comments? I think so. It was a fantastic session today, diving deep into why we should not solely rely on keyword rankings. And I think so. Thanks everyone for joining in tonight. अगर आपको हमारे WhatsApp community में join करना है, I think so अतौर और कुछ और है लोग, तो जब लास्ट ईयर में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का मीटअप किया था, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हमने ऐड किए हैं। सो प्लीज़ DM अस एंड आप हमको मैसेज करिए, एंड वी विल ऐड यू टू द व्हाट्सएप कम्युनिटी वेयर वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। कुछ भी वीकली अपडेट्स आते हैं या कुछ गूगल अपडेट्स आते हैं, कुछ भी है, तो so for sure do join there, and we'll host more events, we'll host more guests. But बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. Thank you for joining in tonight. It was lovely hosting you folks, and stay tuned for our next session.